Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am very enthusiastic because I am going to share with you a very fabulous vocabulary. These are very smart and advanced words, and when you use these words in your communication, it gives you a very good impression when you are speaking. So let's get started. The first word is satire. Satire. Satire means tons, yani ridicule, मोकरी, किसी चीज़ को लेके तंज करना, मजाक उड़ाना, हंसना, not get it seriously. So what is the example of satire? This book is satire on the today's politics. ये किताब आजकल की सियासत पर एक गहरा तंज है. Means when you are using the word satire, that means you are not criticizing someone directly. You are using some other words, characters, some other imaginary words, or some other ideas for criticizing someone, for satire someone. So when you are indirectly criticize someone, you use the word satire. All right. जब आप इनडायरेक्ट वे में किसी पर तंज करते हैं तो हम सटायर का वर्ड यूज़ करते हैं. जब आप इनडायरेक्ट वे में किसी का मजाक उड़ाते हैं या किसी दूसरी चीज़ से किसी दूसरे कैरेक्टर को यूज़ करते हुए आप तंज करते हैं तो हम सटायर का वर्ड यूज़ करते हैं. ऑल राइट. So satire means tons, ridicule, mockery. Now the next word is fatuous. Fatuous. Fatuous means someone is very foolish, silly and stupid. The quality of foolish, silly and stupid. अगर कोई बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत हो तो हम उसके लिए fatuous यूज़ करते हैं. Now look at the example. What a factual comment. कितना मज़ाहिका ख़ेज़ बात की है, कितनी अजीब व गरीब, कितनी बेवकूफ़ाना बात है. What a fatuous act. कितनी बेवकूफ़ाना हरकत है. So when somebody did something very ordinary, something very inappropriate, so we can use the word fatuous. Fatuous mean बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ाना, stupid, silly. So this is a very good vocabulary you should use instead of stupidity, instead of silliness. Now the third word is tempt. Tempt. Tempt means होता है किसी को उकसाना, लालच देना, आजमाना या कशिश महसूस करना. जैसे कि अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप उसकी तरफ खींचें तो यू कैन यूज़ द वर्ड टैम्प्ट. शी टैम्प्टेड मी टू ईट द एप्पल. वो मुझे एप्पल खाने की तरफ आमादा करती है, बहलाती है या लालच देती है. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ हर शाइनी स्किन टैम्प्ट्स मी टूवर्ड हर. उसकी फ्लोलेस स्किन, उसकी शाइनी स्किन जो है मुझे उसकी तरफ खींचती है. तो मीन व्हेन समबडी हैज़ सम काइंड ऑफ स्किल, सम काइंड ऑफ क्वालिटी एंड यू फील टैम्प्ट टूवर्ड्स her or him, so you can use the word tempt instead of attraction or other word. All right. So the next word is assassinate. Assassinate verb है, इसका मतलब है किसी को कत्ल कर देना, ख़त्म कर देना. Kill, murder, slaughter. The government assassinated the rebels for its own benefit. गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे के लिए अपने दुश्मनों को, अपने बागियों को कत्ल कर दिया. सो assassinate means when you are going to kill someone, when you are going to murder someone, when you are going to finish someone. तो assassinate कत्ल करना. इंस्टेड ऑफ यूजिंग किलिंग, किलिंग की जगह, मर्डर की जगह assassinate वर्ड यूज़ कीजिए. इट इज़ मोर गुड वोकैबुलरी. Now the fifth word is solidarity. 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 यकजहती, मिलाना. यूनिटी, हारमनी. यानी जब आप कुछ लोगों को या किसी भी वजह से कुछ चीज़ों को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ द वर्ड solidarity. The example of solidarity is the university staff voiced solidarity with the striking students. तो यूनिवर्सिटी में कुछ तलबा स्ट्राइक कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के जो मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, वो तलबा के साथ यकजहती दिखा रहे हैं. So you can use the word solidarity when you are standing with someone in a difficult time or in a bad time. Solidarity is a very good vocabulary. Try to use in your conversation. Now look at our sixth word, that is exalt. Exalt. Exalt is a verb and exalt means बुलंद करना. Esteem, glorify, honor यानी किसी की इज़्ज़त में इजाफ़ा करना, किसी के ऑनर में इजाफ़ा करना, किसी की प्रेजेंट पोजीशन में इजाफ़ा करना, उसके रैंक को हाई करना. Exalt. Example is the man was exalted from shopkeeper to a company owner.
ये जो आदमी है इसे एक दुकानदार से लेकर कंपनी के मालिक तक बुलंद किया गया, कंपनी के मालिक तक इसका स्टैंडर्ड, इसका रैंक बढ़ाया गया. सो व्हेन यू आर सीइंग समवन इज प्रोग्रेसिंग इन देयर company, in their work, or someone is increasing their rank, so instead of using increasing or this type of vocabulary, you can use exalt. Exalt means इजाफा करना, बढ़ाना, अपने लेवल से ऊपर होना. exalt. Now our second word is carp. carp. carp means ऐब निकालना, किसी में बुराई तलाश करना. ठीक है. complain or find fault, search fault in someone. जब आप किसी में ऐब निकालते हो, बुराई तलाश करते हो, सो दिस इज़ कॉल्ड कार्प. द एग्जाम्पल ऑफ कार्प इज़ आई डोंट वॉन्ट टू कार्प अबाउट द वे माई हस्बैंड डिड इट लास्ट नाइट. मैं अपने हस्बैंड के रवैये की, जो उसने गुज़िश्ता रात मेरे साथ किया, मैं शिकायत नहीं करना चाहती. ठीक है. तो ऐप निकालना, ऐप तलाश करना या दूसरों तक ऐप पहुंचाना, कार्प. अब उसके हस्बैंड में जो बुराई है वो दूसरों को नहीं बताना चाहती, तो शी इज़ सेइंग दैट शी डजंट वांट अ कार्प about her husband. All right, so the next word is castigate. castigate, सज़ा देना, मलामत करना. देखिए, we have lots of vocabulary about the castigate या synonym of castigate, जैसे कि punish, rebuke, condemn, मलामत करना, सज़ा देना. But lots of vocabulary are very common and we keep using in our daily routine. तो अगर उन vocabulary के बजाय you use castigate, so it's really look good. castigate. The king wanted to castigate his subject. King अपने रियाया को, बादशाह अपने रियाया को सज़ा देना चाहता था. So whenever you need to use a word punish, तो सज़ा देने के लिए आप use कीजिए castigate. It is a very good word and it is a verb. So the usage of castigate is very easy. Now look at the second last word, that is contemplate. contemplate. This is the very good word. contemplate means गौर फिक्र करना, किसी चीज़ के लिए डीप थिंकिंग करना, उसे बहुत देर तक एग्जामिन करना. तो जब आप डीप थिंकिंग करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, या कोई बुक पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, आप कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं, सिचुएशंस एंड सिनेरियोज के बारे में सोचते हैं, so you can use the word contemplate. This is also the literary word and in literature it is used very much. contemplate. I contemplated doing the project myself. यानी मैंने बड़ा गौर फिक्र किया कि ये प्रोजेक्ट मैं खुद कर लूँ, but it would have taken too long. लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने में बहुत टाइम लगेगा if I do it alone. ठीक है. तो अब उसने इस प्रोजेक्ट के हवाले से प्रॉज एंड कॉन सब देखे हैं, सारी चीज़ें देखी हैं, एंड देन शी कंटम्पलेटेड एंड डिसाइडेड दैट शी कैन नॉट डू दिस प्रोजेक्ट अलोन. तो जब उसने बहुत गौर फिक्र किया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो ये प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकती. तो जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत गौर फिक्र करें, बहुत ध्यान से सोचें, बहुत डीप में सोचें, सो डू नॉट यूज़ द वर्ड थिंक. थिंक एग्जामिन से ज़्यादा बेटर है कंटम्पलेट. आप यही वर्ड यूज़ कीजिए, कंटम्पलेट, and it is a verb. Now the next word is init. The next and last word is init. Init means फितरी या पैदाइशी. कोई चीज़, कोई क्वालिटी अगर आप में इनबॉर्न है, मीन्स आपका कलर फेयर है फितरी तौर पे, पैदाइशी तौर पे, आपकी वॉइस बहुत स्वीट है, या आप में काम करने की कुछ एबिलिटीज़ हैं, मैनेज करने की कुछ स्किल्स हैं, तो जो चीज़ें आप में फितरी तौर पर मौजूद हैं, आपने एफर्ट करके अपने अंदर वो डेवलप नहीं की हैं, इसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है init. Inborn and natural. Her innate qualities win the heart of everyone. उसकी जो फितरी खुसूसियात हैं वो हर एक का दिल जीत लेती हैं. अब उन क्वालिटीज़ में शायद पोलाइट स्पीकिंग आता हो, फेयरनेस आता हो, दूसरों का ख्याल करना आता हो, तो वट एवर द क्वालिटीज़ ऑफ हर, बट दैट क्वालिटीज़ आर innate. पैदाइशी क्वालिटीज़ हैं, उसने वो डेवलप नहीं की हैं. सो दीज innate qualities win the heart of everyone. सो इफ़ यू हैव एनी नेचुरल क्वालिटी, अगर आपके पास कुछ फितरी आदत है या क्वालिटी है, तो आप उसके लिए वर्ड इनट यूज़ कीजिए. सो दीज आर 10 वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड वर्ड्स. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉमन vocabulary, ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन. बहुत ईजी वर्ड्स हैं, यूजेस के साथ हैं, इन्हें याद करने की कोशिश कीजिए, इन्हें अपनी vocabulary में, अपने सेंटेंसेस में, अपनी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कीजिए, और मैं आई एम वेरी श्योर कि आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्पीकिंग बहुत इम्प्रूव होगी.
So improve your vocabulary, use the advanced vocabulary in your communication and speaking. That's give you the good impression. So keep staying with us, keep learning. Thanks for watching.